Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. I hope that you will also be fine. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. Welcome you in DBS digital class. Let's start today's lecture. Dear students, Assalamu alaikum. We have started chapter number 4 of first year mathematics, which is about quadratic equation. It is our second lecture today. In previous lecture, we discussed about quadratic equation, the standard form of quadratic equations, and methods to solve the quadratic equation. Let's revise them one by one. So, what is a quadratic equation? A second degree equation is called quadratic equation. What is standard form of quadratic equation? The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0. It is important here that a should not equal to 0, because if a becomes equal to 0, then this equation will not remain a quadratic equation. It will become a linear equation. So, how many methods are there to solve a quadratic equation? There are 3 methods to solve a quadratic equation, which are by factorization method, by completing square, and by quadratic formula. Today we discuss about such equations which are not quadratic, but they can be reduced to quadratic form. So our topic is solution of equations reducible to quadratic equations. There are certain types of equations which do not look to be of degree 2, but they can be reduced to the quadratic form. We shall discuss the solutions of such 5 types of the equations one by one. In this lecture, we discuss its first 2 types. First type of this form of equations is a into x raised to power 2n plus b into x raised to power n plus c is equal to 0, where a not equal to 0. अगर हम इसको गौर से देखें तो आप देखें कि x raised to power n है और फिर इसका स्केयर करने से x raised to power 2n हासिल होता है हमें. तो एक टर्म में अगर x की जो पावर है, अगर हम उसके x की पावर n है, जैसे अगर हम इसका स्केयर लें तो दूसरी टर्म में x की पावर 2n आना चाहिए. तो ये पहली टाइप के क्वेश्चंस इस तरह के होंगे. इसमें हम क्या करेंगे, हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि x raised to power n को एक अदर वेरिएबल y या किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे. सपोज हम यहाँ पर x raised to power n को y के इक्वल पुट करते हैं, तो ये above equation will become a y square plus by plus c is equal to 0, because इसमें हमने x raised to power n की जगह पे y पुट कर दिया और x raised to power 2n की जगह पे हमने y square पुट कर दिया. So let us discuss some examples and questions of exercise. So example number 1 is solve the equation x raised to power 1 over 2 minus x raised to power 1 over 4 minus 6 is equal to 0. This equation can be written as, इसमें हमने x raised to power 1 over 2 को x raised to power 1 over 4 के स्केयर के तौर पे लिख लिया. x raised to power 1 over 4 स्केयर minus x raised to power 1 over 4 minus 6 is equal to 0. तो लेट हम करते हैं इसमें x raised to power 1 over 4 is equal to y. Then the above equation will become x raised to power 1 over 4 स्केयर है, इसकी जगह पे बन जाएगा y स्केयर, माइनस x raised to power 1 over 4 है, इसकी जगह पे बन जाएगा माइनस y, एंड माइनस 6 is equal to 0. अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं. इसमें हमने माइनस 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से माइनस 1 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए. तो माइनस 3 प्लस 2, ये इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं कि जब हम माइनस 3 प्लस 2 करते हैं तो माइनस 1 आंसर आता है, और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो माइनस 6 आएगा. सो वी विल गेट y minus 3 into y plus 2 is equal to 0. It means the product of these two factors is equal to 0. Either we say that y minus 3 is equal to 0 or y plus 2 is equal to 0. So y minus 3 is equal to 0 gives y is equal to 3, or y plus 2 is equal to 0 gives y is equal to minus 2. But it is not the solution, because the given equation is in variable x. So we will
सब्स्टिट्यूट जो हमने y की वैल्यू x रेज पर 1/4 इज इक्वल टू y रखा था, y की ये वैल्यू वापस हम इसमें रखेंगे x रेज पर 1/4. सो पुट x इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू 3 तो x रेज पर 1/4 इज इक्वल टू 3. इफ y इज इक्वल टू -2 देन x रेज पर 1/4 इज इक्वल टू -2. वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ x. उसके लिए हम 1/4 पावर को रिमूव करने के लिए टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, x will be equal to 3 raised per 4 and x is equal to -2 raised per 4. 3 raised per 4 gives 81, -2 raised per 4 gives 16. So we have x is equal to 81 and x is equal to 16. This is the solution. Hence the solution set is, इसको आपने सेट की ब्रैकेट्स के अंदर x की वैल्यूज को ऐसे लिख देने हैं कॉमा डाल के 16, 81. This was the example. Now we move towards the exercise 4.2. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये पहली टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें. इसमें x रेज पर 4 - 6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0. एक टर्म में अगर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर लें तो वो x4 होता है. दूसरी टर्म में x4 है, तो हमने x4 को लिख दिया x2 का स्क्वायर -6x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब क्या हम सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे? लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y. इसमें x स्क्वायर की जगह पे y लिखेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा. देन द अबव इक्वेशन विल बिकम y स्क्वायर -6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. Again, we will solve it by factorization method. प्लस 8 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको ऐड करें तो -6 आए और मल्टीप्लाई करें तो +8 आए. कौन से होंगे ये? -4, -2. -4 और -2 को ऐड करें तो -6 बनता है, और -4 मल्टीप्लाई बाई -2 करें तो +8 बनता है. So we will write -6 as y square. -6 को कैसे लिखेंगे? -2y -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म से y कॉमन ले लिया, y इंटू y -2, और नेक्स्ट टू टर्म से -4 कॉमन ले लिया, -4 इंटू y -2. अब इन दोनों से y -2 कॉमन लिया तो हमें मिला y -2 इंटू y -4 इज इक्वल टू 0. अगेन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0. So either y -2 is equal to 0 or y -4 is equal to 0. यहां से y is equal to 2 और y is equal to 4, but it is not our solution. We have to find the solution in terms of x. So replace the value of x. हमने y को पुट किया था x square. So y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x square. If y is equal to 2, then x square is equal to 2. If y is equal to 4, then x square is equal to 4. X square is equal to 2 gives x is equal to ±2 square root, and x is equal to 4 gives x is equal to ±2. तो ये इसकी 4 वैल्यूज x की आई हैं. सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखेंगे +-2 स्क्वायर रूट, कॉमा डाल के +-2 और फिर सेट की ब्रैकेट लिखेंगे, व्हिच इज आवर सोल्यूशन. एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इसकी स्टेटमेंट में देखें, x रेज पर -2 -10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज पर -1. तो जो राइट साइड पे 3 इंटू एक्स रेज -1 है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा x रेज पर -2 -3 इंटू एक्स रेज पर -1 -10 इज इक्वल टू 0. अब इसमें कौन सी ऐसा x अपनी पावर समेत है कि हम उसका स्क्वायर लें तो वो दूसरी टर्म के इक्वल आ जाए. जैसे देखें x की पावर -1 है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो x -2 आ जाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट x -2 as x -1 स्क्वायर -3 इंटू एक्स रेज पर -1 -10 इज इक्वल टू 0. अब इसमें क्या हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे? x रेज पर -1 की जगह पे हम लिखेंगे y. Put x raised पर -1 is equal to y.
then the equation will become y square x minus 1 whole square की जगह पे हमने y square लिख दिया, minus 3x raised to minus 1, it will become minus 3y और minus 10 is equal to 0. तो ये quadratic equation है. Again we will solve it by factorization. minus 10 के ऐसे फैक्टर हमने बताने हैं जिनको ऐड करें तो minus 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो minus 10 आए. तो minus 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? minus 5 plus 2. minus 5 plus 2 करते हैं तो आंसर हमें मिलता है minus 3 एंड minus 5 मल्टीप्लाई में plus 2 करते हैं तो आंसर मिलता है minus 10. So this will become y square plus 2y minus 5y minus 10 is equal to 0. Taking y common from first two factors, so inside the brackets we get y plus 2. Taking minus 5 common from next two terms, so inside the bracket we get y plus 2. Again we have ये ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है y plus 2 ये दोनों में कॉमन है, ये हम बाहर ले लेंगे तो y minus 5 और y plus 2 ये प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की शक्ल में इज इक्वल टू 0 हमें मिलता है. इट मींस अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर y minus 5 is equal to 0 और y plus 2 is equal to 0. If y minus 5 is equal to 0, y will become equal to 5, and if y plus 2 is equal to 0, y is equal to minus 2. But again it is not our solution. We will again put y is equal to x raised पर minus 1 जो हमने शुरू में सब्स्टिट्यूशन की थी वो वापस हम उसको रिवर्ट करेंगे. y is equal to 5 है तो x raised पर minus 1 will be equal to 5. If y is equal to minus 2 है तो then x raised पर minus 1 is equal to minus 2. We want to find the value of x. x raised पर minus 1 को हम लिख सकते हैं 1 over x. 1 over x is equal to 5 और 1 over x is equal to minus 2. Taking reciprocals on both sides, x will become equal to 1 over 5 and x will become equal to minus 1 over 2. So solution set is 1 over 5 minus 1 over 2. Next we take question number 5, which is x raised by 2 over 5 plus 8 is equal to x raised by 1 over 5. Shifting the right side on the left side, we will get x raised by 2 over 5 minus 6 into x raised by 1 over 5 plus 8 is equal to 0. In this equation, we have x raised by 1 over 5. अगर हम इसका स्केयर करेंगे ना x raised by 1 over 5 तो हमें मिलेगा x raised by 2 over 5. So हमने x raised by 2 over 5 को लिख दिया x raised by 1 over 5 इसका स्केयर. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x raised पर 1 over 5 की जगह पे हम लिखते हैं y. Put x raised पर 1 over 5 is equal to y, then the above equation will become y square minus 6y plus 8 is equal to 0. So find the factors of plus 8. अगर हम उनको ऐड करें तो minus 6 मिले और मल्टीप्लाई करें तो plus 8 मिले. 8 के फैक्टर्स कौन से बनेंगे? minus 4 minus 2. minus 4 और minus 2 को ऐड करें तो minus 6 आता है और minus 4 मल्टीप्लाई बाय minus 2 करें तो plus 8 आता है. So we write it as y square minus 2y minus 4y plus 8 is equal to 0. फर्स्ट टू टर्म से y कॉमन लिया y minus 2, नेक्स्ट टू टर्म से minus 4 कॉमन लिया तो पैरेंथेसिस में आया y minus 2. Again taking common y minus 2 will get y minus 4 is inside the brackets and product of y minus 2 y minus 4 is equal to 0. It means either y minus 2 is equal to 0 or y minus 4 is equal to 0. If y minus 2 is equal to 0, then we will get y is equal to 2 and y minus 4 is equal to 0, we will get y is equal to 4. So if y is equal to 2, then x raised power 1 over 5 is equal to 2. तो again इसमें हम 1 over 5 रिमूव करने के लिए टेकिंग पावर 5 on both sides, लेफ्ट साइड पे भी पावर 5 लिया और राइट साइड में भी पावर 5 लिया. तो लेफ्ट साइड पे आ गया x is equal to 32
और राइट साइड पे इफ y इज इक्वल टू 4 देन x रेज पर 1 over 5 इज इक्वल टू 4. So taking power 5 on both sides, x will be equal to 4 raised per 5 is equal to 1024. Its solution set is 32 and 1024. So the first type of this type of equations is completed. Now we move towards the second type. Second type is of the form, it is a product of four linear factors, x plus a into x plus b into x plus c into x plus d is equal to some constant number k. इसमें हमने इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि a और b का सम c और d के इक्वल आ जाए. अगर ऐसे ना हो तो हम उनके अरेंजमेंट को आगे पीछे करके इस तरह से इनको अरेंज करेंगे कि ये जो कांस्टेंट फैक्टर्स इसमें हैं, जैसे ये a, b, c और d, कि a और b का सम c और d के इक्वल हो, तो फिर हमने इस तरह से इसको अरेंज कर देना है. लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2. टाइप 2 में ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक इस टाइप के हैं. इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. पहले ये एग्जांपल हम देखते हैं. x minus 2, x minus 7 into x minus 3 into x plus 1 into x plus 5 minus 1680 is equal to 0. इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको रीअरेंज करना है. इस तरीके से हमने रीअरेंज करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जैसे -7 -3 +1 +5 ये कांस्टेंट है कि किसी भी दो का सम बाकी दो के सम की इक्वल आ जाए. अगर हम इसको गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि -7 + 5 करें तो -2 आता है और -3 + 1 करें तो -2 आता है. तो हम इसको रीअरेंज ऐसे करेंगे, इनकी ग्रुपिंग हम ऐसे करेंगे कि x -7 के साथ x + 5 का पेयर बना देंगे और x -3 के साथ x + 1 का पेयर बना देंगे और फिर इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. x -7 को x + 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² - 2x - 35 और x -3 को x + 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² - 2x - 3 -1680 इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब इस तरह से अरेंज करने का हमें ये फायदा मिलता है कि इसमें जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं दोनों फैक्टर्स में, जैसे ये x² - 2x है और दूसरे में भी x² - 2x है, ये दोनों सेम आ जाते हैं. अब इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि x² - 2x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें. सपोज y के इक्वल हम इसको पुट कर दें. पुटिंग x² - 2x इज इक्वल टू y. अब इक्वेशन में x² - 2x की जगह पे हम y पुट कर दें तो ये इस तरह से बन जाएगा y - 35 और दूसरे फैक्टर में x² - 2x की जगह पे y पुट किया y - 3 और -1680 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको y - 35 और y - 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा y² -38y और +105 और इसमें ये माइनस करेंगे 1680 इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब ये y² -38y -1575 इज इक्वल टू 0 सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया. अब इसमें हमने क्या करना है कि 1575 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम -38 हो. क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लर्न किया था, -b + -b² - 4ac होता है ओवर 2a. इसमें आपने b की जगह पे 38 है, जब -b पुट करेंगे तो +38 आ जाएगा. b² करेंगे -38 का स्क्वायर 1444 आ गया और -4ac दिस विल बी इक्वल टू +6300 ओवर 2a किया तो 2 आ गया. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म आ गया. y इज इक्वल टू 38 ± 88 ओवर 2 या ऐड करने से y इज इक्वल टू 63 आ गया. y इज इक्वल टू -25. अब ये हमने सब्स्टिट्यूशन की थी y की वैल्यू, उसको वो वापस लौटा दें. y की वैल्यू हमने x² - 2x की जगह पे ये y की वैल्यू पुट की थी. तो
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 63 बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 63। तो 63 को उधर ले गए माइनस 63। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। माइनस 63 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने से माइनस 2 आता हो, तो कौन से बनेंगे ये? -9 + 7, -9 + 7 करते हैं तो -2 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें -9 × +7 तो -63 आता है। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए x + 7 और x - 9। Either we have x is equal to -7 or x is equal to 9. Similarly, y is equal to -25, y की जगह पे x स्क्वायर -2x हमने रिप्लेस किया, तो ये बन गया x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -25। तो इधर आ गया x स्क्वायर -2x + 25 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि 25 के ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से -2 आए। अगर इजीली फाइंड हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फैक्टर नहीं है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, आयोटा की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ये सॉल्यूशन सेट इसका। Now we move towards the exercise 4.2. इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप, ये टाइप जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 13 तक इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। आप देखें कि x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 4 इज इक्वल टू 24। अब इसमें ऐसे कांस्टेंट टर्म्स ढूंढें कि उन दो को ऐड करें तो वो उसका सम बाकी दो कांस्टेंट्स के सम की इक्वल हो। जैसे x + 1 है और इधर x + 4 है, 1 + 4 करते हैं तो 5 आता है, इस तरह 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा। तो आप इनको पेयरिंग कर लें इनकी, 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3, इस हिसाब से इनको रीअरेंज कर लें। x + 1 के साथ x + 4 मिला दें और x + 2 के साथ x + 3 मिला दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें। हर पेयर को x + 1 को x + 4 से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर + 4x + x + 4 आ गया, और x + 2 को x + 3 से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर + 3x + 2x और +6 इज इक्वल टू 24 आ गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म बन गई x स्क्वायर + 5x + 4 × x स्क्वायर + 5x + 6 इज इक्वल टू 24। अब लेफ्ट साइड पे दो फैक्टर्स हैं, आप देखें दोनों में x स्क्वायर + 5x ये कॉमन है, इसको हम अदर वेरिएबल y के को लेट कर लेते हैं। So put x square + 5x is equal to y, then the above equation become, जिसमें हम x square + 5x की जगह पे y पुट करेंगे, it will become y + 4 × y + 6 is equal to 24। इनको मल्टीप्लाई कर दें, y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर, फिर 6 से किया 6y + 4 × y 4y + 4 × 6 24 is equal to 24। तो ये 24 - 24 ये 0 हो गया, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर + 10y इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इसकी y हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग y कॉमन, y × y + 10 इज इक्वल टू 0। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ y एंड y + 10 इज इक्वल टू 0। आइदर वी से दैट y इज इक्वल टू 0 और y + 10 इज इक्वल टू 0। तो अब ये वापस हम जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो वापस इसको लौटाएंगे। हमने x स्क्वायर + 5x की जगह पे y पुट किया था, अब y की जगह पे x स्क्वायर + 5x पुट करेंगे। तो इफ y is equal to 0, then we get x square + 5x is equal to 0। यहां से x कॉमन ले लिया, x × x + 5 is equal to 0। Either x is equal to 0 और x + 5 equal to 0। ये x is equal to -5 आ गया, दो x की वैल्यू यहां से मिल गई। सिमिलरली दूसरी वैल्यू थी y is equal to -10, इसमें हमने y की जगह पे x स्क्वायर + 5x पुट किया, तो ये बन गया x स्क्वायर + 5x इज इक्वल टू -10। -10 को उधर ले गए, x स्क्वायर + 5x + 10 इज इक्वल टू 0। अब हम सोचें कि 10 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ऐड करने से 5 आए। आई थिंक ऐसे कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब ये हम लाजमी तौर पे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b + -b स्क्वायर - 4ac/2a। आप इनको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि यहाँ पे 1 है, x का कोएफिशिएंट b होता है जो कि यहाँ पे 5 है, और जो कांस्टेंट टर्म c होती है वो यहाँ पे 10 है।
तो x की a की जगह पे 1 पुट करेंगे इसमें, b की जगह पे 5 और c की जगह पे 10। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दी है, सिंप्लीफाई किया। -5 प्लस माइनस के रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टाइम 10 इज 40/2। तो ये -5 प्लस माइनस -15 स्क्वायर रूट ओवर 2। जब स्क्वायर रूट के नीचे माइनस नेगेटिव नंबर आ जाए, इट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसको हम ऐसे आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। x minus 5 x minus 7 into x plus 6 into x plus 4 minus 504 is equal to 10। अब इसमें हम देखते हैं कि किन दो कांस्टेंट्स का सम बाकी दो कांस्टेंट्स के सम की इक्वल आता है। तो अगेन फिर यही नजर आता है कि पहला फैक्टर और इधर से फोर्थ फैक्टर, x minus 5 और x plus 4, क्योंकि -5 प्लस 4 करेंगे तो -1 आता है और -7 प्लस 6 करेंगे तो वो भी -1 आता है। तो इस तरतीब से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -7 प्लस 6। रीअरेंज इट, x minus 5 के साथ हमने x plus 4 मिला दिया और x minus 7 के साथ हमने x plus 6 मिला दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, x minus 5 को x plus 4 से मल्टीप्लाई किया और x minus 7 को x plus 6 से मल्टीप्लाई किया। x को x से मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर मिला, x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x और -5 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20। इसी तरह से हमने x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 6x, -7 इंटू x -7x और -7 इंटू प्लस 6 -42 इज इक्वल टू 504। फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस x माइनस 20 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x माइनस x माइनस 42 इज इक्वल टू 504। आप देखें दोनों फैक्टर्स में लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर माइनस x सेम आता है। तो हमारी जो कोशिश होती है रीअरेंज हम इसीलिए करते हैं कि ये x वाले जो फैक्टर्स हैं ना ये सेम आ जाए। x स्क्वायर माइनस x को आप हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर सकते हैं। Put x square minus x is equal to y, then the above equation become x square minus x की जगह पे y पुट करने से ये बन जाएगा y minus 20 और y minus 42 is equal to 504। अब इनको मल्टीप्लाई किया, y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, y को minus 42 से मल्टीप्लाई किया minus 42y, अगेन minus 20 into y minus 20y और minus 20 into minus 42 plus 840 minus 504। मजीद सिंप्लीफाई करने से ये बन गया y स्क्वायर माइनस 62 प्लस 336 इज इक्वल टू 0। आप देखें इसमें 336 के हमने फैक्टर्स बताने हैं जिनको ऐड करने से -62 हो। अगर इजीली फाइंड हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसे हमने देखा कि -56 और -6 इनको ऐड करें तो -62 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करें तो 336 आ जाएगा। पहली दो टर्म से y कॉमन लिया, y माइनस 6, फिर -56 कॉमन लिया तो अगेन वी गेट y माइनस 6। अब इन दोनों से y माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 6 इंटू y माइनस 56 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट मीन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर वी हैव y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 56। अगेन इट इज नॉट आवर सोल्यूशन, हमने इसको x की फॉर्म में लेके आना है। तो ये है जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी शुरू में, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x लिया था, वो वापस इसके y की जगह पे लिखेंगे। y की जगह पे x स्क्वायर माइनस x लिखा तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 6 बन गया। तो यहां से x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन आसानी से हो सकती है। -6 के फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करने से -1 आता हो, तो ये बनेंगे -3 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से x कॉमन ले लें, x इंटू एक्स प्लस 2। अगली दो टर्म से -3 कॉमन ले लें, -3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों से x प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर वी हैव x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू -2। अब दूसरा हम लेते हैं इसकी
y इज इक्वल टू अगर 56 के इक्वल है तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 56। इसको सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 56 के फैक्टर जिनको ऐड करने से माइनस 56 के फैक्टर जिनको ऐड करें तो -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -56 आए, तो ये बनेंगे -8 प्लस 7। -8 प्लस 7 करते हैं तो -1 मिलता है और -8 मल्टीप्लाई में +7 करेंगे तो -56 मिलेगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56 इज इक्वल टू 0, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड टेकिंग -8 कॉमन फ्रॉम नेक्स्ट टू टर्म्स। तो x प्लस 7 को कॉमन लिया तो ये फैक्टर्स बन गए x माइनस 8 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आइदर वी हैव x माइनस 8 इक्वल टू 0 और वी हैव x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। So we have x is equal to 8 and x is equal to -7. So solution set is 3 minus 2, 8 minus 7. Now we move towards the next question. Question number 10. This question is slightly different from the other questions. आप देखें कि इसमें एक टर्म में x है, दूसरे में 2x है और फिर तीसरी में भी 2x है और फिर x है। तो आप इसमें देखें कि किन का सम बाकी दो के सम के इक्वल आता है, तो किसी का भी सम बाकी दो के सम के इक्वल नहीं आता। इसके लिए हमें थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका चेंज करना पड़ेगा। है वो अगले 2-3 स्टेप्स के बाद हमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी ये हम इसको ऐसे करते हैं कि जो लीनियर जो ऐसे फैक्टर जिनका कोएफिशिएंट 1 है, x प्लस 1 जैसे और x प्लस 3 है, इनको हम इनकी पेयरिंग कर लें और 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5 इनकी अलग से पेयरिंग कर लें। तो हम इसको रीअरेंज इस तरह से करते हैं कि जिनके कोएफिशिएंट्स 1 हैं, x प्लस 1 और x प्लस 3, उनको हमने इकट्ठा कर लिया और जिनके कोएफिशिएंट्स 2 हैं उनको हमने अलग से इकट्ठा कर लिया। अब इसी तरतीब से इन पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें। x प्लस 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 आ गया और 2x प्लस 3 को 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 945। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 945। आप देखिए इसमें पहला जो फैक्टर है उसमें आता है x स्क्वायर प्लस 4x और दूसरे में आता है 4x स्क्वायर प्लस 16x। अब बाजार ये दोनों फैक्टर्स ये सेम नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें ये करेंगे सेकंड वाले फैक्टर में 4 कॉमन ले लें, जैसे ये हमने 4 कॉमन लिया है तो ये 4 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस 4x आ गया, ये वही है जो कि पहले फैक्टर में था x स्क्वायर प्लस 4x। तो ये 3-4 स्टेप्स के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि इसको हम एक और वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं। तो अब इसमें x स्क्वायर प्लस 4x को y के इक्वल हम पुट करते हैं। Put x square plus 4x is equal to y, then the above equation will become y plus 3 into 4y plus 15 is equal to 945. तो इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे, we get 4y square plus 15y plus 12y plus 45 minus 445 is equal to 0. फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, 4y square plus 27y minus 900 is equal to 0. माइनस 900 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3600। -3600 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करने से 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो -3600 आए। तो ये बनते हैं -48 प्लस 75। अगर इजीली फाइंड हो जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ टेकिंग 4y कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड 75 कॉमन फ्रॉम नेक्स्ट टू टर्म्स, we get y minus 12 into 4y plus 75 is equal to 0. So we have y minus 12 is equal to 0, 4y plus 75 is equal to 0. If y minus 12 is equal to 0, we get y is equal to 12. If 4y plus 75 is equal to 0, we get y is equal to minus 75 over 4. Now we put y is equal to x square plus 4x is equal to y. If y is equal to 12, then
y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमने लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 12, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 12 के फैक्टर्स जिनको ऐड करने से प्लस 4 आए, प्लस 6 माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 12 is equal to 0. Taking x common from first two terms and 6 common from next two terms, we get x minus 2 into x plus 6 is equal to 0. Either we have x minus 2 is equal to 0, or we have x plus 2 is equal to x plus 6 is equal to 0, or we have x is equal to 2, x is equal to minus 6. Similarly, if we have y is equal to minus 75 or 4, then in place of y put x square plus 4x. So we have x square plus 4x is equal to minus 75 or 4. Simplifying it, we get quadratic equation 4x square plus 16x plus 75 is equal to 0. Now we multiply 4 by 75, which is 300. 300 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से 16 आता हो। मल्टीप्लाई करें तो 300 आए और ऐड करें तो 16। ऑब्वियसली ऐसे कोई फैक्टर नहीं है, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root over 2a। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो इन प्लेस ऑफ a we have 4, इन प्लेस ऑफ b we have 16 और c की जगह पे है 75। a b c की ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें, we get minus 16, b की जगह पे हमने 16 पुट किया, प्लस माइनस b स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह पे 4 है और c की जगह पे 75, स्क्वायर रूट ओवर 2a, a की जगह पे 4, 2 इंटू 4, माइनस 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 256 माइनस ये 1200 ओवर 8। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 944 स्क्वायर रूट ओवर 8। तो ये अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसे हमने इस तरह से ले लिया, 16 इंटू माइनस 59, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले गए, माइनस 16 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 59 स्क्वायर रूट ओवर 8, 4 ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे 4 और 8, 4 टू ज़र 8, ये आ गया। इसको आयोटा की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो 59 स्क्वायर रूट को हमने माइनस 59 स्क्वायर रूट को 59 इंटू माइनस 1 स्क्वायर रूट, 59 स्क्वायर रूट इंटू माइनस 1 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि माइनस 1 स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है, इसलिए 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट की जगह पे आयोटा हमने लिखा। ये सोल्यूशन सेट इसका है। आज हमने ये दो टाइप्स डिस्कस किए हैं, इसके लिए ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 9, 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 फर्स्ट टाइप के हैं, 7, 9, 11, 12 एंड 13 ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर।